Assalamualaikum everyone. Welcome back to my YouTube channel Arfat Maths Classes. This is Arfat Soul and today we are going to learn the area related to circle, the important formulas in this chapter. So we are going to derive all the formulas in this chapter and all the formulas related to segment and sector. So बने रहिए हमारे साथ. So let's start the lecture. So it's log से point which moves जो क्या कर रहा है move कर रहा है side is distance from fixed point which is center remain as constant and the fixed point is called as center of the circle and the fixed distance is called as radius of the circle. Clear? So this is circle. What is radius? Radius is a fixed distance from the center, fixed distance from the fixed point, and you know fixed point is सेंटर. ठीक है. सो रेडियस इज फिक्स्ड डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट. जो क्या कर रहा है, जो मूव कर रहा है. ठीक है. जो मूव कर रहा है इसकी फिक्स्ड डिस्टेंस किससे? सेंटर से. दैट इज रेडियस. नाउ इफ वी हैव अ सर्कल and we have a line segment whose end points lies on the circle. Whose end points lies on the circle. This is called as chord of the circle. So chord क्या होगा? Whose end points, it's a line segment. Basically it's a line segment, but whose end points lies on the circle. Whose end points lies on the circle. Second thing is this. It's a line. ठीक है? It's a but it is बिल्कुल it intersects a circle at 2 points, but its end points doesn't lie on the circle. ठीक है? ये एक लाइन सेगमेंट भी हो सकता है. ये जरूरी नहीं है कि हम खाली लाइन ही लेंगे. सो इसके जो एंड पॉइंट्स होंगे वो होंगे आउटसाइड द सर्कल. इसके एंड पॉइंट्स क्या होंगे? आउटसाइड द सर्कल. इसको क्या बोलेंगे हम? सीकेंट. Now the longest chord is called as diameter, which passes through the center. This is diameter. Diameter is simply the longest chord. Longest chord which passes through the center of the circle is called as diameter. Or diameter is twice radius. ठीक है? Because यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है? Radius. और यहाँ से लेकर यहाँ तक है radius. और diameter is twice radius, twice r. Clear? So use थोड़ा बहुत basic. क्यों? Basic. Tangent. What's tangent? A line which touches a circle at one point. It's a line which touches the circle at only one point. ठीक है? So this is a line which touches the circle on only one point. This is called as tangent. This is called as tangent to the circle. Clear? Clear Chetan? Okay. Now, if we have a circle and with the radiuses or the radius को बोलते हैं. This is R and this is R. The area enclosed by the two radiuses and the arc it is called a sector. Sector of the circle. This area. Minor sector. This is minor sector and this is major sector. ठीक है? So what is sector? Sector is the area enclosed by the arc and two radii of the circle. That is sector. Another thing is segment. Segment is the area enclosed by the chord, and minor arc or major arc. This is minor segment. This is major segment. Clear? So what is segment? What is segment? Area between a chord and arc. Yeah, it is area enclosed by the chord. And the arc of the circle. चाहे फिर वो minor arc होगी या major arc होगी. ठीक है? यहाँ. It is the area enclosed by the chord and arc of the circle. अब अगर ये arc होगी minor arc तो वो बन जाएगा minor segment. अब अगर arc होगी major arc वो क्या बन जाएगा? Major segment. Clear? यहाँ पे. What is sector? Sector is the area enclosed by the arc and two radius of the circle. ठीक है? अगर अभी arc होगी minor arc तो बन जाएगा minor sector. अगर arc होगी major arc बन जाएगा major sector. बस इतना याद रखना है. समझ आया? यहाँ तक समझ आया सबको? ओके. अब हम देखिए. हाँ जी. ये भी आपको पता ही है. This is circle. This is what is its area?
What is the area of circle? Pi r. Exactly. That is pi r square. Pi r square. What is its circumference? Pi r. 2 pi r. That is 2 pi r. Exactly. 2 pi r. Now, if we divide the circle into two equal parts, that is known as semicircles. Semicircles. What is the area of semicircle? Pi r. Area of whole circle is pi r square. But we divide this circle into two equal parts. Pi r divided by 2. So its area will be pi r square divided by 2. So this is the area of semicircle. Area of semicircle. Now, if I divide this area, if I divide the circle into four equal parts called quadrants. Quadrants. What is area of one quadrant? Pi r square divided by 4. Yeah, exactly. This is pi r square divided by 4. Because these four quadrants are of equal area. So, and we have divided the whole circle into four equal parts. So, area will get divided into four equal parts. So, this is pi r square divided by 4. Now, we'll move forward towards the area of sector and area of. अगर अब हमारे पास होगा एक सेक्टर, इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है सेक्टर का. अगर एक सेक्टर होगा कोऑर्डिनेट, तो आपको पता है इसका एरिया होगा पाई r स्क्वायर डिवाइडेड 4. लेकिन अगर अब ये कोऑर्डिनेट नहीं होगा, ये कोऑर्डिनेट से छोटा होगा, ये कोऑर्डिनेट से बड़ा होगा, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी. फिर आप ऐसे इसका एरिया नहीं निकाल सकोगे. क्लियर? सो उस टाइम हम क्या करेंगे, देखो दिस इज सेक्टर, दिस इज रेडियस, this is radius, and these two radiuses subtend the angle theta at the center. Clear? This is called a central angle. क्या बोलते हैं इसको? Central angle. And we denote this by theta. We denote this by theta. If theta is the central angle subtended by the two radiuses at the center of the circle, at the center of the circle. अच्छा, आप मुझे पहले बताओ, अगर हमारे पास ये सर्कल है, इसका होल एरिया क्या है? टोटल एरिया पाई आर स्क्वायर. वेरी गुड. सो इसका एरिया है पाई आर स्क्वायर. पाई चुप करो, पाई आर स्क्वायर है इसका एरिया. इस पाई आर स्क्वायर जब इसका एरिया है, दैट मींस ये होल सर्कल एरिया है, तो हम स्टार्ट करेंगे यहां से हम स्टार्ट करेंगे ऐसे 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 करके हम पूरा एक सर्कल बनाएंगे. सेंटर एंगल क्या बन जाएगा उस टाइम? 360. वेरी गुड. सो जब वेरी गुड कंप्लीट एंगल. ठीक है, जब सेंटर एंगल हमें बनता है, सेंटर एंगल थीटा जब होगा 360 डिग्री, तब एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर. तब एक कंप्लीट सर्कल बनेगा. हमें बात है समझ? सो जब सेंट्रल एंगल होगा 360, उस टाइम क्या होगा? उस टाइम एक कंप्लीट सर्कल बन जाएगा, तो उसका एरिया निकल के आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, जो आपको ऑलरेडी पता है. क्लियर? ओके. अब हम क्या करिए, यहां से हम निकालेंगे 1 डिग्री एंगल. अगर होगा, अगर अब एंगल होगा 1 डिग्री, तो ये 360 यहां से डिवाइड होगा. सो ये बन जाएगा पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 360. सो 1 डिग्री, अगर यहाँ पे हमें एंगल बन जाएगा 1 डिग्री. सो यहां से लेकर यहां तक मान लेते हैं ये 1 डिग्री का एंगल है यहाँ पे, सेंटर एंगल. सो ये जो एरिया होगा इस सेक्टर का, ये क्या बन जाएगा? पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 360. क्लियर? क्लियर? अच्छा, अब अगर ये सेंट्रल एंगल हमें बन जाएगा यहाँ पे थीटा, क्या बन जाएगा? 1 डिग्री में क्या है? पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 60. पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई, अब अगर 10 डिग्री का निकालना होगा, आप कैसे निकालोगे? 10 डिग्री का इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 10. सो आएगा 10 डिग्री इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर. क्लियर? ये आपने कितने का निकाला? 10 डिग्री का. अब अगर सेंटर एंगल हुआ थीटा, आपको थीटा डिग्री का निकालना है. सो थीटा डिग्री क्या निकलेगा? थीटा डिग्री इज इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. क्लियर? ये बन जाएगा उस टाइम एरिया ऑफ दैट सेक्टर. एरिया ऑफ दैट सेक्टर इन द सेंट्रल एंगल इज थीटा. इन द सेंट्रल एंगल इज. नाउ व्हाट इज एरिया ऑफ सेक्टर? थीटा बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर. दिस इज द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको मेमोराइज करना है. ठीक है? सो देयरफॉर एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर. वेयर एक थीटा क्या है? थीटा क्या है यहाँ पे? एंगल. कौन सा एंगल? हाँ, वेयर दिस थीटा is the central angle. Theta is central angle. R, what is R? R is radius of the circle, and what is pi? 22 divided by 7. Clear? तो सारी चीजें आपको मालूम होगी. जब आपको बस थीटा देखना है क्या होगा, और देखना है रेडियस.
उसको लगाओगे इस फॉर्मूला में, वहां से क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ Sector. सेक्टर। क्लियर है ये चीज? सो व्हाट इज एरिया ऑफ सेक्टर? थीटा बाई 360। क्लियर? क्लियर गो सैरनियन? अब अगर ये हमारे पास एक सर्कल है और यहां से एक सेक्टर बन रहा है आपका, जिसका सेंट्रल एंगल है थीटा एंड रेडियस है आर, रेडियस है आर। इन चारों में ये बातें आपको बता रहा हूं, ठीक है? ओके, आपको क्या करना है, आपको ये जो आर्क है, इस आर्क की लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है। आर्क लेंथ यहां से, इसको हम नाम देंगे ए, इसको देंगे बी, इसको हम नाम देंगे सम एम। सो ये जो आर्क है ए एम बी, ए एम बी, इसकी लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है। इसकी लेंथ आप फाइंड आउट कैसे करोगे, वो आप देखना है। क्लियर? एरिया तो आपने देख लिया कि इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे, वो आपने ऑलरेडी देख लिया। रुके, अच्छा आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ठीक है? एरिया आपने इसका ऑलरेडी देख लिया कि एरिया हम कैसे निकालते हैं। अब क्या देखना है, ये जो आर्क लेंथ है इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। क्लियर? समझ आया बासित? ओके, आप मुझे बताओ, अगर ये सर्कल है मेरे पास, अगर मुझे इसका सेंट्रल एंगल जो है वो बनना है 360, दैट मींस एक कंप्लीट रिवोल्यूशन हो रहा है। यहां से मैं स्टार्ट करूंगा, यहां से लेकर यहां से यहां तक, ठीक है? कंप्लीट सर्कल से के साथ, कंप्लीट साइकिल से के साथ कोई एंगल क्या बन रहा है उस टाइम, सेंटर एंगल 360। जब मुझे एंगल बन रहा है 360 सेंटर एंगल, उस टाइम मुझे इस आर्क की लेंथ क्या है, वही सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। व्हाट इज सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल? वेरी गुड। उस टाइम मुझे आर्क लेंथ बन रही है 2 पाई आर। वेरी गुड, ठीक है? सो जब मुझे अब एंगल बनेगा 1 डिग्री, उस टाइम क्या आएगा मुझे, 1 डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई आर। वेरी गुड। अब अगर मुझे सेंट्रल एंगल बन जाएगा थीटा डिग्री, सो थीटा इज इक्वल, जब मुझे थीटा बनेगा सेंटर, उस टाइम आएगा मुझे थीटा डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई आर। ये मुझे उस टाइम आ जाएगा लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क। देयरफॉर लेंथ ऑफ आर्क is equal to theta divided by 360 multiplied by 2 pi r। क्लियर? इसको लिख के रखो। उस टाइम एंगल वेरी होगा, यहाँ पे क्या है एंगल थीटा, तो मेजर में एंगल क्या होगा 360 माइनस थीटा। उस टाइम 360 माइनस थीटा, उस टाइम थीटा के बदले में आप क्या लिखोगे, 360 मल्टीप्लाई थीटा डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई r। क्लियर? बस एंगल वेरी होगा उस टाइम, और कुछ नहीं होगा। इसको हम ज्यादातर हम इसको L से डिनोट करते हैं, L फॉर द लेंथ, लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क। सो थीटा, लेंथ ऑफ द आर्क इज थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई r। इसको हम L से डिनोट करते हैं। हाँ जी, जरा मुझे एक बात बोलो, अगर मुझे एक कंप्लीट साइकिल बन जाए, कंप्लीट एंगल बन जाएगा, तो एंगल क्या बन जाएगा सेंट्रल एंगल उस टाइम 360। उसको यूज करो यहाँ पे, 360 डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई आर। 360 गया, क्या आया 2 पाई आर। गुड। जब मुझे एक कंप्लीट साइकिल बन जाएगा, उस टाइम मुझे क्या निकलेगा, आर्क लेंथ। दैट मींस वो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल के बराबर आ जाएगा। ऑब्वियसली बात है, ये हमने वैसे इसी में से निकाला, तो इसी के बराबर तो आना ही था। सो क्या पढ़ा आपने अभी तक? एरिया ऑफ सेक्टर विच मेक्स द सेंटर एंगल थीटा, ठीक है? उसका एरिया क्या होगा, थीटा डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। वेरी गुड, दिस इज फर्स्ट फॉर्मूला। सेकंड क्या पढ़ा आपने, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क विच मेक्स द सेंट्रल एंगल थीटा। ओके, वो क्या बन जाएगा, थीटा डिवाइडेड बाई 360 इंटू 2 पाई आर। क्लियर? सो ये दो चीजें आपने पढ़ी अभी तक। अब हम तीसरी चीज पढ़ने जा रहे हैं, जो है कि हाँ जी, हाँ, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट। वेरी गुड। सो इफ यू हैव अ सर्कल, नहीं ये जरूरी है, इफ यू हैव अ सर्कल और ये है हमारे पास कॉर्ड ए बी, यहां से हमें आर्क है ए एम बी, और हमें इस सर्कल का जो सेंटर है वो है ओ। क्या है, ओ। हमें क्या करना है, हमें ये जो यहाँ से सेगमेंट बन रहा है, इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। सेगमेंट का एरिया ध्यान रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज। इस सेगमेंट में क्या करना है, एरिया हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर? फार्मूला तो मैं ऐसे भी बता सकता हूँ कि इसका जो एरिया है वो इसके बराबर, लेकिन वो फार्मूला आई कहां से, हम वो समझते हैं, ठीक है? बस समझे ना? ओके, हम क्या करेंगे, यहां से
इस O को हम इस A के साथ ज्वाइन करेंगे और इस O को हम B के साथ ज्वाइन करेंगे। अगर आप देखोगे ये OAMB ये क्या बन जाएगा? ये सेक्टर बन जाएगा भाई। क्या हुआ? सेक्टर बन जाएगा ना ये OAMB। ये सारा सारा एरिया क्या बन जाएगा? ये एक सेक्टर बन जाएगा। इसका जो सेंटर एंगल वो होगा थीटा इन जारो। क्लियर? सेंटर में क्या होगा इसका? थीटा। क्या बन के जाएगा? सेक्टर। क्या बन जाएगा? सेक्टर। सो अगर आपको इस सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करना है, हाँ वो करेंगे हम एरिया ऑफ सेक्टर, उसको माइनस करेंगे एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल बात है समझ? एरिया ऑफ सेक्टर हमें ऑलरेडी पता है। एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल थीटा बाई 3c इनटू पाई आर स्क्वायर। हमें ऑलरेडी हमने पढ़ा है ऑलरेडी। क्लियर? उसको हम सेपरेट क्या करेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल। बट एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें पता नहीं है इसका एरिया क्या है। इस एरिया का ट्रायंगल क्या है वो हमें पता नहीं है। सो एरिया ऑफ दिस सेगमेंट ये किसके बराबर आ जाएगा? एरिया ऑफ सेगमेंट। Area of sector एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ सेक्टर। minus area of कौन सा सेक्टर? OAMB। OAMB माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल। कौन सी ट्रायंगल? AOB। क्लियर? सो दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर। व्हाट इज एरिया ऑफ सेक्टर? थीटा बाई 360 into pi। सो दिस इज थीटा डिवाइडेड बाई 360 into pi r स्क्वायर। माइनस क्या करेंगे हम? area of triangle. एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। लेकिन इस एरिया और ट्रायंगल का एरिया हमें पता नहीं है। कैसे निकालेंगे? कुछ आइडिया है? अगर तो करता तो हाँ जी, डालेंगे परपेंडिकुलर, फिर बिल्कुल बन जाएगा 90। कोई शक ही नहीं है। हाँ इनसाइड थी भाई 90। वो ये एरो डालने की जरूरत ही नहीं है। देखो व्हाट इज OA? इट इज रेडियस ऑफ द सर्कल। व्हाट इज OB? इट इज रेडियस ऑफ द सर्कल। इफ्रा को गुजारिश की जाती है कि वो ना लिखे, वो बोर्ड पे ध्यान दे, वरना फिर समझ में नहीं आएगा। सो ये जो ट्रायंगल है OAB ये कौन सी ट्रायंगल है? इसके दो साइड्स बराबर है। आइसोसेलेस ट्रायंगल। कौन सी ट्रायंगल है? दैट मींस अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इसको जब हम परपेंडिकुलर डालेंगे वो नीचे वाली साइड को बाइसेक्ट करेगा। क्या करेगा? बाइसेक्ट। इसको हम नाम देंगे सम सी। आओ गुंजे, दिस इज सी। था P, क्यों नहीं मानो? दिस इज P। क्लियर? क्लियर सी चीज? ओके। सो हमें इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। लेकिन ये परपेंडिकुलर OP जो हमने परपेंडिकुलर डाला है तो इससे क्या हुआ? इससे ये जो थीटा एंगल था ये हुआ बाइसेक्ट। ये क्या हुआ? तो ये वाला एंगल होगा यहाँ से, ये होगा थीटा बाई 2। ये क्या होगा? ये भी क्या होगा? थीटा बाई 2। क्लियर है ये चीज? इंपॉर्टेंट चीज है क्वेश्चन मार्क ले सही में क्या थोड़ा बहुत स्टेप आगे तो बस ये एंगल क्या बन जाएगा यहाँ पे? ये भी क्या बन जाएगा? थीटा बाई 2। क्लियर? अब ये जो ट्रायंगल है हमारे पास AOP ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें जो एंगल P है वो है 90 डिग्री। कौन सा ट्रायंगल है? 90 डिग्री। राइट एंगल ट्रायंगल है और इसमें एक एंगल हमें गिवन है और एक साइड भी गिवन है। तो हम ट्रायगोनोमेट्री इस पे अप्लाई कर सकते हैं जो हमने ऑलरेडी पढ़ी है। क्लियर? ट्रायगोनोमेट्री अप्लाई करिए। ओके जी, हमें क्या फाइंड आउट करना है? ये वाला साइड AP। AP क्या है इस ट्रायंगल का? वेरी गुड, इट्स परपेंडिकुलर। ठीक है, बिकॉज़ गिवन एंगल इज दिस, so the side opposite to given angle is perpendicular. Clear? And the side opposite to right angle is hypotenuse. So hypotenuse is this, and we have to find the perpendicular. What do you find? Perpendicular. What is that trigonometric ratio in which sine? Very good. In which hypotenuse and perpendicular are given. Sine is perpendicular by hypotenuse. What is sine? Perpendicular by hypotenuse. Okay. So let's find here the area of this triangle. Area of this triangle AO. इसका एरिया हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, बाकी हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे। क्लियर? ओके। सो ये जो ट्रायंगल है यहाँ पे AOP, इन ट्रायंगल AOP इसमें हम क्या करेंगे? साइन, इसमें हम निकालेंगे साइन थीटा बाई 2, क्योंकि एंगल क्या है हमारे पास? गिवन एंगल क्या है हमारे पास? थीटा बाई 2। साइन थीटा बाई 2 साइन थीटा perpendicular by hypotenuse. So this perpendicular divided by hypotenuse. But what is perpendicular here? AP. So it is AP divided by what is hypotenuse? AO. But AO is R. AO is radius. So it is R.
क्लियर है यहाँ तक? ओके, सो साइन थीटा बाई टू इज एपी डिवाइड बाई आर, एपी डिवाइड बाई, यहाँ से हम एपी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. सो ये आर है, ये क्या है? डिवीजन. सो ये बिल्कुल मल्टीप्लाई होगा. सो दिस इंप्लाइज एपी हमें निकल के आ जाएगा आर टाइम्स साइन थीटा बाई टू. ये चीज क्लियर है? Yes, sir. सो व्हाट इज एपी? दिस एपी, this is r sin theta by 2, r sin theta by 2. So this AP is r sin theta by 2. लेकिन AP किसके बराबर है? PB, क्योंकि इस परपेंडिकुलर इसको बाइसेक्ट किया. क्या किया? बाइसेक्ट. सो ये भी क्या होगा? r sin theta by 2. सो ये जो टोन है AB, AB क्या होगा फिर? Therefore AB is equal, वो बन जाएगा r sin theta by 2 प्लस r sin theta by, वो बन जाएगा 2 times r sin theta. क्लियर है ये चीज? क्या बन जाएगा? सो इट इज 2 times r sin थीटा बाई 2. ये चीज क्लियर है यहाँ तक? सबको समझ आया यहाँ तक? ओके, सो इस एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया क्या था? हाफ ऑफ बेस हाइट. बेस हमने फाइंड आउट कर ली, दैट इज AB. AB इज ट्वाइस r sin थीटा बाई. अब क्या फाइंड आउट करना है आपको? हाइट. व्हाट इज हाइट? दैट इज OP. अब आपको क्या फाइंड आउट करना है? OP. सो ये अगेन हम यही वाले ट्रायंगल लेंगे, इसमें हम ये परपेंडिकुलर, सॉरी बेस फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, बेस फाइंड आउट करेंगे. हमें गिवन क्या है यहाँ पे? परपेंडिकुलर गिवन, हम बेस फाइंड आउट करेंगे. हम लेंगे cos. व्हाट इज cos थीटा बाई 2? अगेन cos थीटा बाई 2 इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेन्यूज. व्हाट इज बेस? What is base? OP. What is base? OP. So it is OP divided by R. Very good. No, therefore, what is OP? OP की वैल्यू निकालो यहाँ से. OP is equal to R है इन डिवीजन. ये होगा यहाँ पे ट्रांसपोज करेंगे, क्या होगा? मल्टीप्लाई. सो ये आ जाएगा R cos थीटा बाई 2. क्लियर है ये चीज? OP निकल के आ गया हमें R cos थीटा बाई 2. लेकिन OP क्या था? और यहाँ पे क्या था? इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर. सो इस ट्रायंगल का एरिया क्या था? हाफ ऑफ बेस. सो यहाँ पे हम इसको एरिया सब्स्टिट्यूट करेंगे. यहाँ पे हम इसका एरिया सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो इट्स एरिया इज हाफ ऑफ बेस. व्हाट इज बेस? AB मल्टीप्लाइड बाय हाइट. व्हाट इज हाइट? OP. यहाँ तक क्लियर है सबको? किसी को कोई कंफ्यूजन? ओके, सो दिस इज इक्वल टू, ये तो ऐसे है थीटा डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. इसको हम कुछ नहीं करेंगे. माइनस 1/2 मल्टीप्लाई. व्हाट इज AB? AB हियर, AB की वैल्यू यहाँ पे ट्वाइस r sin थीटा बाई 2 मल्टीप्लाई बाई OP. व्हाट इज OP? r cos थीटा बाई 2. यहाँ तक क्लियर है सबको? ओके, ये जो सारी चीजें है इन मल्टीप्लीकेशन. सो 2 है ऊपर भी, 2 है नीचे भी, होगा कैंसिल. क्या होगा? और r मल्टीप्लाई बाय r होगा r स्क्वायर. क्या होगा? सो ये हमें यहाँ पे बन जाएगा माइनस r स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2. ये हमें r स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, यहाँ हमें एरिया निकल के आ गया इस ट्रायंगल का. सो व्हाट इज एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल? r स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई, यहाँ पे क्या था एरिया ऑफ दिस सेक्टर? थीटा बाई 360 मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर. पाई आर, यहाँ से आप आर स्क्वायर को कॉमनली निकाल सकते हो, वैसे जरूरत भी नहीं है. सो दिस इज द एरिया ऑफ सेगमेंट. ठीक है, सो देयरफॉर एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू दिस. ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और बहुत इजी है, इजी फॉर्मूला. ठीक है, सो इट इज theta divided by 360 into pi r square minus r square sin theta by 2 cos theta by 2, where the center angle of this segment is theta. Clear?